Assalamu alaikum student, mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. Student, this is a short video on decimal multiplication. Let's just look at the process of multiplying two decimal numbers by solving this example. The question is, we have two decimal numbers. The first one is 73.24 and the second one is 5.1, and we have to multiply these two numbers. So the first question is, which number should I write at the top? Since we have four digits in the first number and two digits in the second number, so I will write 73.24 at the top because this number has more digits, and the next number, that is 5.1, I will write this number at the bottom. And after that, what will I do? The second step is I have to count the number of decimal places now. So the first number has two decimal places, or I can say that there are two digits after the decimal, so I will just write 2 like this. And in the second number, I have only one decimal place, or I can say that there is only one digit after the decimal. So I will just write 1 like this, and I will add these two numbers. 2 plus 1 will give me 3. After adding these two numbers, अब ये जो डेसिमल पॉइंट आपको यहाँ नजर आ रहा है, यू हैव टू फॉरगॉट दिस डेसिमल पॉइंट फॉर सम टाइम. इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाना, ठीक है? और भूल जाने के बाद अपने नंबर्स को इस तरह लिख लो, 7324 मल्टीप्लाई बाय 51. ठीक है? कहाँ गया डेसिमल, वो मैं एंड में बताऊंगा कि वो डेसिमल मैं क्यों भूला हूँ. ठीक है, तो पहले क्या करना है, सबसे पहले यू हैव टू राइट द टू नंबर्स. वो आप डिसाइड कर लेना, जिसके डिजिट ज्यादा है उसको ऊपर लिख लेना, जिसके डिजिट्स कम है उसको नीचे लिख लेना. ठीक है, या फिर जस्ट फॉलो द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज 73.24 मल्टीप्लाई बाय 5.1. जस्ट राइट 73.24 एट द टॉप एंड 5.1 एट द बॉटम. ठीक है. Then what is the second thing? You have to count the number of decimal places. There are two decimal places in the first number, 2 यहाँ लिख दिया, and there is only one decimal place in the second number, 1 यहाँ लिख दिया. 2 plus 1 gives you 3. आपने ऐड करके 3 यहाँ लिख लिया. अब ऐड करने के बाद you have to forget this decimal. अब भूल जाओ और अपने नंबर्स को इस तरह लिख लो, 7324 मल्टीप्लाई बाय 51. अब मल्टीप्लाई कर लो जल्दी से, जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होती है. तो 4 times 1 will give you 4, 1 times 2 2, 1 times 3 3, and 1 times 7 is 7. तो ये हो गया 7324. Now it's the turn to multiply 5. अब 5 की बारी है, तो you will just put a cross like this. आप इस तरह 0 भी लिख सकते हो, आप क्रॉस भी डाल सकते हो. अब now we have to multiply 5 with 4. तो 5 times 4 is 20. अब 20 का आपको पता है कि 0 जो है वो यहाँ पे आ गया, 2 यहाँ कैरी हो गया. ठीक है, तो मैं छोटा सा 2 यहाँ लिख लिया. ठीक है, दोबारा रिपीट करता हूँ. 5 times 4 is 20. You will write 0 over here and you will write 2 at the top like this. Now 5 multiplied by 2 will give you 10, and now you have to add this 2. 10 plus 2 will give you 12. Now again 12, so you will write 2 over here and 1 at the top like this. 5 times 3 is 15. 15 plus 1 will give you 16. Again we have two digits, so you will write 6 here and 1 at the top of 7. 5 times 7 is 35. 35 plus 1 is 36. So since now I don't have any number, so I will just write 36 like this. Now I have to add these two numbers. 4 plus 0, cross means 0. 4 plus 0 will be 4. 2 plus 0 will be 2. 3 plus 2 will give me 5. 7 plus 6 will give me 13. 3 over here and 1 at the top like this. 6 plus 1 will give me 7, and 3, since there is no number at the top, means 0. So 3 plus 0 will give me 3. Now you have to put the decimal. Don't forget to put the decimal at the end. If you forget to put the decimal, all the process will be wrong. Your answer will be completely wrong. So this 3 will tell me where I have to put my decimal. अब ये 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि तुम्हें जो है वो यहाँ से काउंट करना शुरू करना है, बिकॉज देयर इज अ डेसिमल एट द एंड ऑफ एवरी नंबर. अगर यहाँ एक नंबर मैं लिखता हूँ 43 और आपसे पूछता हूँ वेयर इज द डेसिमल नंबर, तो आप बोलोगे कि सर 43 में 3 के बाद जो है ना ये है डेसिमल नंबर. ठीक है, तो देयर इज अ डेसिमल नंबर. अब यहाँ डेसिमल नंबर है. सिंस आई हैव 3, आई हैव टू शिफ्ट माय डेसिमल नंबर और माय डेसिमल पॉइंट 3 प्लेसेस टू द लेफ्ट. तो अब यहाँ से जब मैं 3 प्लेसेस करूंगा, तो 1 2
or 3. So I will put my decimal over here. So this is my final answer, that is 373.524. जब आप 73.24 को मल्टीप्लाई करोगे 5.1 से, तो यू विल गेट 373.524। जल्दी से इसको अपने कैलकुलेटर से भी वेरीफाई कर लो, और मैं एक बार जल्दी से दोबारा प्रोसेस पूरा रिपीट कर देता हूँ। द फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू राइट बोथ द नंबर्स। अब वो आपकी मर्जी है कि आप क्वेश्चन को फॉलो करना चाह रहे हो तो क्वेश्चन को फॉलो कर लो, वरना मेरा तरीका ये है कि भाई जिसके ज्यादा डिजिट्स होते हैं ना जिस नंबर के, उसको मैं टॉप पे लिखता हूँ। तो 73.24 एट द टॉप, 5.1 एट द बॉटम। उसके बाद क्या करना है, द नेक्स्ट स्टेप इज यू हैव टू काउंट द डेसिमल प्लेसेस। यहाँ दो डेसिमल प्लेसेस हैं, मतलब डेसिमल के बाद आपके पास दो डिजिट्स हैं, यहाँ डेसिमल के बाद आपके पास एक डिजिट है। तो आपने ये 2 यहाँ पे लिख लिया, और इसका जो एक डेसिमल प्लेस था वो यहाँ लिख लिया, दोनों को ऐड किया और 3 आ गया। अब जब ऐड किया नंबर आ गया 3, अब इस डेसिमल को भूल जाना है थोड़ी देर के लिए, इसको एंड में लगाएंगे। तो जब आप भूल जाओगे तो आपका नंबर इस तरह नजर आएगा, 7324 मल्टीप्लाई बाय 51। अब जल्दी से इनको नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा उसमें यू हैव टू पुट द डेसिमल बैक। अगर आपने वहां डेसिमल नहीं लगाया तो ये गलत हो जाएगा सब। ठीक है, तो अब ये जो 3 है ये आपको बताएगा कि आपको डेसिमल कहाँ लगाना है। हमेशा डेसिमल एंड में होता है, और 3 का मतलब है कि यू हैव टू शिफ्ट योर डेसिमल पॉइंट टू द लेफ्ट, 3 प्लेसेस टू द लेफ्ट। तो 1, 2 और 3, मेरा डेसिमल यहाँ आ गया। माय फाइनल आंसर इज 373.524।